We are coming Breaking news coming in as part of the investigation into the Delhi blast probe, State Investigation Agency carrying out raids in Jammu. The raids are going on in an office of a newspaper in Jammu. Remember, previously in Sopian district, inspections were carried out at the district hospital and the community health center in Zainapura. Similar checks were also conducted at the sub-district hospital Yaripora and the primary health center in Devsar in Kulgam. So clearly we can see that now in connection with this entire Delhi blast probe, there have been raids, continuous search raids being conducted across Jammu and Kashmir. Joining us on the broadcast is our Jammu and Kashmir Bureau Chief Ajay Jandyal with more details on the story. Ajay, we are now learning of a raid that is being conducted in the office of a newspaper. This is followed by raids at a hospital, at the district health center as well. Could you take us through the details, please? Going on by the Special Investigation Agency of Jammu and Kashmir, and this is regarding the previous cases which they are investigating against the Kashmir Time newspaper. And early in the morning, the Jammu and Kashmir Police as well as the State Investigation Agency team have reached the spot, and they started, raiding this establishment over there in Jammu city in Residency Road. And there are we are expecting that some digital evidences as well as other documents will be seized. And this is not the first time when the raids are taking place on the Kashmir Times office, because this is one of paper which was basically stopped publishing after a raid took place in the previous time, and it was one of a famous newspaper in the past. But when investigation agencies have started investigating the Kashmir Times about their funding and other bungling, they the paper was publishing was stopped, and today fresh raids are taking place in the Jammu. All right, Ajay, please do stay on with us. In fact, we have some more breaking inputs into the story. The probe into the Al Falah University in Faridabad is intensifying with each passing day. This university stands at the center of the Delhi blast probe. Now the Delhi Police Special Cell has detained Ahmed Raza, a medical student at Al Falah University from Deoband. Raza is a third-year student at the Al Falah University. He is suspected of being a close associate of Umar Nabi, the Delhi suicide bomber. Officials have said that Raza's name surfaced during the ongoing multi-agency investigations following the arrests of Dr. Adil Mehna Ahmed, Dr. Muzammil Shakil and others linked to the expanding terror module. Joining us on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more information on this. Javed, we are learning of a new suspect that is coming to the fore, Ahmed Raza, और ये शायद डॉक्टर नाबी के क्लोज एसोसिएट रह चुके हैं, इसीलिए इनसे भी पूछताछ की जा रही है। और देखिए बहुत लंबी पूछताछ का जो एक लिस्ट है और जांच एजेंसी के पास, हम आपको बता दें कि लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसको लेकर जो एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया गया, इसमें तमाम जो व्हाइट कॉलर्स डॉक्टर्स थे वो इसमें शामिल थे, और जिस तरीके से ये पूरा एक मॉड्यूल का कनेक्शन जैश मोहम्मद से जो है ये कनेक्ट होता है, और इस तरीके का जो एक पूरा लिंक है इस नेटवर्क के पीछे जो इस टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया गया, इसमें जैश मोहम्मद का जो आपको हम बता दें कि जो कनेक्शन सामने है, ये पूरे उस मॉड्यूल को ऑपरेट किया गया। इसमें पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, हालांकि कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन वहीं जहां एक तरफ इस टेरर मॉड्यूल को लेकर जो जांच है वो कश्मीर से लेके दिल्ली और आपको झारखंड, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल और आपको उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक लगी हुई है जांच एजेंसी
इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अल्फला यूनिवर्सिटी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अल्फला यूनिवर्सिटी में जो है आपको जो है ये जानकारी मिली है कि जवाद अहमद सिद्दीकी का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको पूरी तरीके से ढहा जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में बताया गया कि वहां पर इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से जो है बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। साथ ही जो फाइनेंशियल जिस तरीके से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है और शेल कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था इस अल्फला यूनिवर्सिटी को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अल्फला यूनिवर्सिटी में एक नॉर्म्स एंड नॉमिनेशन जो नॉर्म्स था, एक जो रूल एंड रेगुलेशंस होता है, शायद वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। इसी वजह से यहाँ पे किस तरह के डॉक्टर्स यहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं, किस तरीके के डॉक्टर को यहाँ अंदर लाया जा रहा है, किनको यहाँ पर टीचिंग के लिए फैकल्टीज बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीजें जो है गड़बड़ी पाई गई है। मतलब एक पूरा वो तरीका नहीं था कि आप अगर किसी को रिक्रूट कर रहे हैं या किसी को पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं तो वो किस तरीके का बैकग्राउंड है। कई ऐसे लूप होल जो है वो सामने आए हैं, और जांच एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले में अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई। इसमें यूपी एटीएस की बात करें या फिर हरियाणा एसटीएफ की बात करें, हरियाणा क्राइम ब्रांच की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें जो टेरर मॉड्यूल पर इस पूरे पर काम करती है, साथ ही सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे केस को फॉलो कर रही है, तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही है। और तकरीबन 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त एजेंसी के रडार पर हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ये जानकारी आई थी सोर्सेज के हवाले से, एजेंसी उन 15 लोगों को भी तलाश रही है, जिसमें से कुछ कश्मीरी मूल के भी लोग हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर बताए जा रहे हैं कि वो आखिर अल्फला यूनिवर्सिटी से कहाँ गायब हो गए, कहाँ मिसिंग हो गए। क्योंकि अक्टूबर में ही जो है आपको बता दें कि जो नबी जो है वहां से फरार हो गया था अल्फला यूनिवर्सिटी से। और जब उसे लग रहा था कि डॉक्टर मुजम्मिल और ये लोग पकड़े जाएंगे या उमर के पास भी एजेंसी और पुलिस पहुंच सकती है, तो इसको लेकर वो पूरी तरीके से जो है अपने आप को उसने छुपा लिया था। अब ये भी देखना है कि उमर इस बीच जब वो छुपा रहा, वो किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल या फिर किसी जानकार के पास है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कितने हैंडलर्स हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है अब जहां एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां सीबीआई भी इस केस को इस पूरे जो करप्शन है इसको समझने की कोशिश कर रही है, सीबीआई की भी एंट्री जल्द हो सकती है। हालांकि सीबीआई की कुछ टीम एक एक दो बार अल्फला यूनिवर्सिटी आ भी चुकी है। वहीं सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कई अहम जो रोल है उन सब को लेकर भी जांच की जा रही है। देखिए इसमें इरफान और इश्तियाक नाम के 2 जो मौलाना हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल क्योंकि जो जी जी, जावेद बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इनपुट्स